Friend, how are you? I am Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am Chartered Accountant and MBA Finance and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis. आज जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में जिक्र कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया पहला पॉइंट्स है एक्सप्लेन व्हाट इज द मीन्ड बाय द एक्सप्रेशन फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी of a state under Article 356 of the Constitution of India, which situation will not fall within the expression. इसका आंसर होगा emergency means a situation which is not normal. Emergency का मतलब होता है कि ऐसा सिचुएशन जो नॉर्मल नहीं है. A situation which call for urgent remedial action. अर्जेंट माने तुरंत रिमेडियल एक्शन होगा. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ एबनॉर्मल सिचुएशन. इसमें थ्री काइंड्स ऑफ एबनॉर्मल सिचुएशन होता है इमरजेंसी में. प्रोवाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच कॉल फॉर अ डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल गवर्नमेंट मशीनरी. पहला पॉइंट एन इमरजेंसी ड्यू टू वार, एक्सटर्नल एग्रीजन, आर्म्ड रिविलियन, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352. राष्ट्रीय इमरजेंसी जो लगता है वो आर्टिकल अनुच्छेद 352 संविधान की आर्टिकल 352 में यह लगता है. फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट. जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में फेलियर होता है तो आर्टिकल 356 लगता है. फाइनेंशियल इमरजेंसी जो लगता है वो आर्टिकल 360 में लगता है. संविधान की धारा 360 में, संविधान की आर्टिकल 360. जब भी हम संविधान की बात करेंगे तो वो अनुच्छेद की बात करेंगे, आर्टिकल की बात करेंगे. जब हम क्रिमिनल केस पढ़ते हैं या सीआरपीसी या बीएनएसएस पढ़ते हैं तो उसमें धारा का यूज करते हैं, लेकिन संविधान में हम आर्टिकल का यूज करते हैं. आर्टिकल मतलब अनुच्छेद. जैसे आर्टिकल 356, अनुच्छेद 356, प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट. जब स्टेट के द्वारा यदि कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से प्रोविजनली वो फेलियर हो जाता है उस केस में इफ़ द प्रेसिडेंट अगर राष्ट्रपति ऑन रिसीप्ट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ स्टेट otherwise it satisfied that the situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution, the president may by proclamation means घोषित करना, assume to himself all any of the function of the government of the state, all any of the power vested in exercisable by the governor, any body authority in the state other than the legislature of the state. बी में पॉइंट लिखेंगे डिक्लेयर दैट द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइज बाय अंडर ऑथोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, मेक सच इंसिडेंटल एंड कंसेक्वेंटल प्रोविजन एज appear to the president to be necessary, desirable from giving effect to the object of the proclamation, including provision for suspending in whole in part the operation any provision of this constitution relating to any body authority in the state. Provided nothing in this clause shall authorize the president to assume to himself any of the power vested in exercisable by a high court to suspend in whole in part of the operation of any provision of the constitution relating to high court. Power under Article 356 का क्लॉज 1. आर्टिकल 356 का क्लोज 1 बताता है इज एन इमरजेंसी पावर बट इज नॉट एन एब्सोल्यूट पावर. आर्टिकल 356 कन्फेयर मीन्स प्रदत्त करना, ए पावर टू बी एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस टू डिस्चार्ज द ऑब्लिगेशन कास्ट अपॉन हिम बाय आर्टिकल 355. It is a measure to protect and preserve the Constitution. The governor takes to the oath prescribed by Article 159 to preserve, protect, and defend the Constitution and the laws to the best of his ability. Power under Article 356 is conditional या condition being formation of satisfaction of the President as contemplated by Article 356 का clause 1. The satisfaction of the President is the satisfaction of Council of Ministers as provided in Article
74 का क्लॉज 1 द प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। The plain reading of Article 374 का clause 2 stating that the questions were any and if so what advice was tendered by minister to the president shall not be inquired into in any court may seem to convey that the court is debarred for inquiring into such advice, but Bomi has held that Article 74 Clause 2 is not a bar against security of the material on the basis of which the President has issued the proclamation under Article 356. It was further said that the Parliament would be entitled to go into the material on the basis of what the Council of Ministers tenders and advise, and therefore secrecy in respect of material cannot remain inviolable when the proclamation is challenged by making out a prima facie case with regard to its invalidity. The burden would be on the Union government to satisfy that there exists material which so that the government could not be carried on in accordance with the provision of the Constitution, since such material would be exclusively within the knowledge of the Union government. In view of the provision of Section 106 of the Evidence Act, the burden of proving the existence of such material would be on the Union government. Duration of proclamation under Article 356. Article 356 का clause 3 provide that a proclamation relating to a state emergency shall be laid before each house of parliament unless both house approve it by a resolution. It shall case to have effect at the expiration of 2 months. However, provision is clause 3 provide that if any such proclamation is issued at the time when Lok Sabha is dissolved, जब लोकसभा जब डिजॉल्व होगा तो उस समय प्रोक्लेमेशन को हम जारी करेंगे। द डिजुलेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। द प्रोक्लेमेशन इज पास बाय द राज्यसभा। राज्यसभा द्वारा जब प्रोक्लेमेशन पास होता है बट नॉट बाय द लोकसभा इफ सेल केस टू ऑपरेट at the expiry of 30 days from the date on which the new Lok Sabha meets, unless before the expiry of 30 days it has also been passed by the Lok Sabha. आर्टिकल 356 का क्लॉज 4 बताता है provide that the duration of proclamation can be extended by 6 months each time by both House of Parliament passing resolution approving its continuance. The proviso of clause both the House of Parliament का मतलब हो गया लोकसभा और राज्यसभा. The proviso the clauses for laid down that the maximum period for which a proclamation can remain in operation is 3 years from the date is issue under Article 356 का 1. आर्टिकल 356 का 5 बताता है however laid down the beyond 1 years a proclamation can be continued only if emergency under Article 352 it in operation in the whole of India in the whole any part of the state and the election commission certified that it is not possible to hold election to the state legislature. It may be noted that in Punjab the president rule was imposed for 5 years, but for the constitution was amended several times. Some land and mark judgment. लैंड द स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का यह जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन द गाइडलाइंस रिगार्डेड टू द आर्टिकल 356 के बारे में जिक्र किया है। इसमें लैंडमार्क जजमेंट को भी आपको लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चंस में। फिर आपको इम्प्रॉपर ग्राउंड ऑफ इन्वोकिंग आर्टिकल 356 ग्राउंड ऑफ इन्वोकिंग आर्टिकल 356 में क्या करना पड़ता है। ग्राउंड फॉर इन्वोकिंग आर्टिकल 357 हंग असेंबली सिनेरियो, हैंग असेंबली सिनेरियो होगा। फिर उसके बाद करप्शन माला माला डिमिनिस्ट्रेशन, करप्शन एंड माला डिमिनिस्ट्रेशन एक्टिंग कंट्ररी टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यूनियन डायरेक्टिव और सब वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, फेलियर टू मीट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन,
an outbreak of unprecedented violence. Unprecedented violence means Mardhar, a great natural calamity and security concern, dangerous national intrigations, and Secretary of State calling for an application Article 352 से लेकर 355 तक. Improper ground for invoking Article 356. Improper ground में आर्टिकल 356 का क्या ग्राउंड है? इम्प्रॉपर एक्शन बाय गवर्नर इन केस ऑफ पॉलिटिकल instability. The power of Parliament to amend the Constitution is limited. Examining this statement critically in view of two Constitution, 24th and 42nd Amendment Act, the Supreme Court decision in that regard. Supreme Court decision का इसमें amendment में क्या विषय था, रिगार्ड किया था? The provision of the amendment of the Constitution is provided in Article 368. The Constitution of India, the express amendment of this Constitution in Article 368 means any addition charge in any of the provision of the Constitution within the broad contours of the preamble and Constitution to carry out the objective in the preamble and the directive principle applied to fundamental right. It means that while the fundamental right cannot be abrogated, reasonable abridgment of fundamental right can be effected in the public interest. This meaning would enable Parliament to adjust the fundamental right in order to secure what the directive principle direct to be accomplished while maintaining the freedom and dignity of every citizen. The provision of amendment in Constitution fall under three categories: amendment by simple majority, amendment by special majority, उसके बाद amendment by special majority and rectification by state. रेक्टिफिकेशन में सुधार करना, स्टेट द्वारा जो अमेंडमेंट मेजोरिटी में स्पेशल मेजोरिटी में सुधार किया गया हो. इसमें क्या करती है? द अमेंडमेंट शैल आल्सो रिक्वायर्ड रेक्टिफाइड बाय द लेजिस्लेचर द्वारा ये रेक्टिफाई होता है. लेजिस्लेचर द्वारा ये रेक्टिफाई होता है. उसके बाद द स्टेट प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन अमेंडमेंट रोल फ्लाइंग द मैटर. इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट द्वारा प्रेसिडेंट का चुनाव, एक्सटेंट ऑफ एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, संघ और राज्य का शक्ति का कार्यपालिका को एक्सटेंड करना, सुप्रीम एंड हाई कोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंट्रल और स्टेट माने केंद्र और राज्य के बीच में जो लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना, फ्री लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करना उसके लिस्ट को इन पार्लियामेंट में स्टेट के रिप्रेजेंटेशन करना. एंड आर्टिकल 368 itself मीन्स स्वयं. दीज आर प्रोविजन विच रिलेट टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक फेडरल स्ट्रक्चर होता है. कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर, पोजीशन एंड ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट. The true position is that every provision of the Constitution can be amended, provided in the result the basic foundation and structure of the Constitution remains the same. The basic structure may be said to consist of the following feature. Consist of means होता है के बावजूद, यह प्रीपोजिशन है. सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का सुपरमेसी. फ्यूचर मीन्स फोरकास्टिंग करना. रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिकल फॉर्म गवर्नमेंट से डेमोक्रेटिकल फॉर्म होना. रिपब्लिक सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का सेकुलर कैरेक्टर को देखना. सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियल. सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी लेजिस्लेचर का अलग पावर है, एक्सिक्यूटिव का अलग है और जुडिशरी को अलग किया गया. जब संविधान आया तो आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और एक्सिक्यूटिव को डिफाइन किया गया. एक्सिक्यूटिव ऑफिसर में सबसे ऊपर में होता है डीएम, जिसको होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. उसके बाद होता है एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. उसके बाद होता है एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट. उसके बाद माने बीडीओ जो भी आते हैं, जो प्रशासनिक डिपार्टमेंट होते हैं, वो उसके नीचे सब आते हैं. तो वो एक्सिक्यूटिव रैंक का होता है.
उनको पनिशमेंट देने का पावर नहीं होता, उनको खाली ओनली फॉर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। लेकिन जुडिशरी को अलग किया गया, जुडिशरी को पनिशमेंट देने का पावर है। यदि फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट है, सेकेंड क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट है, सीजीएम हो गया, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया, सेशन न्यायालय का जज हो गया, तो सबको अलग अलग पावर दिया गया है। उनको जैसे सीजीएम को 7 साल सज़ा देने का पावर है। अब फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट को 3 साल देने का, माने 3 साल तक का सज़ा देने का पावर है, और 50,000 तक रुपया जुर्माना लगा सकता है। उसी तरह सेकेंड क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट जो होता है उसको 1 साल सज़ा देने का पावर है, और वो 10,000 तक का जुर्माना लगा सकता है। अब जैसे मान लें कि सीजीएम 7 साल का, अभी उससे उससे ऊँचा ऑफेंस हो गया, तो उसका वो ट्रायल करने का पावर जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो होता है वो किसी भी ऑफेंस का वो ट्रायल कर सकता है। फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट किसी ऑफेंस का ट्रायल कर सकता है, लेकिन उसको कमिटल प्रोसीडिंग सेशन कोर्ट में ट्रायल करना पड़ेगा। कमिटल प्रोसीडिंग कहाँ होगा? सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट को डेथ सेंटेंस देने का पावर है। सेशन कोर्ट क्या है? यह क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल केस, क्रिमिनल कोर्ट माना जाता है। क्रिमिनल कोर्ट में कौन कौन आते हैं? क्रिमिनल कोर्ट में सेशन कोर्ट आते हैं, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट सीजीएम है, फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट है, और फिर से एक्सिक्यूटिव जो आते हैं, एक्सिक्यूटिव रैंक में जो आते हैं, जैसे मान लें कि एडीएम हो गए, डीएम हो गए, तो ये सब एक्सिक्यूटिव का पार्ट है। इनको सज़ा देने का पावर नहीं है, लेकिन बीएनएसएस की धारा में कुछ कुछ पॉइंट जो है, जो एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर दिया जाता है कि वो उस अपने पावर का एक्सरसाइज कर सके। तो पनिशमेंट देने का पावर जुडिशल मजिस्ट्रेट के अलावा किसी के पास नहीं है, चाहे वो डीएम हो, चाहे एडीएम हो, चाहे कोई भी कार्यपालक अधिकारी है। उनको ओनली फॉर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है और कानून के अंदर ही उसे काम करना है। तो एक छोटा सा जुडिशल मजिस्ट्रेट को सज़ा देने का पावर है, पनिशमेंट देने का पावर है, बाकी किसी को पावर नहीं है। अब आइए, अब जैसे मान लें कि जैसे सिविल कोर्ट होता है, 2 कोर्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक सिविल कोर्ट, एक क्रिमिनल कोर्ट। तो सिविल का जो मैटर होता है वो ओनली फॉर प्रोसीजर लॉ के थ्रू आता है। जैसे सीपीसी होता है, सीपीसी मेरा क्या है? प्रोसीजर लॉ है। उसी तरह बीएनएसएस क्या हो गया? बीएनएसएस बीएनएसएस भी प्रोसीजर लॉ में आता है। लेकिन बीएनएस जो होता है, भारतीय न्याय संहिता जो होता है, जो आईपीसी को रिप्लेस करके उसको बीएनएसएस में कन्वर्ट किया गया, तो वो एक सब्सटेंटिव लॉ होता है। सब्सटेंटिव लॉ का मतलब ये होता है कि उसको हम एडजेक्टिव लॉ भी कहते हैं। सब्सटेंटिव लॉ में पनिशमेंट का वो एक्सरसाइज दिया रहा था कि ये, जैसे मान लें कि मर्डर किए तो उसमें 100 का सेक्शन लगता है। तो पहले था 302 था, तो उसकी जगह उसको रिप्लेस किया गया सेक्शन से। तो उसमें ये सज़ा को बताता है कि ये सेक्शन लगेगा। लेकिन प्रोसीजर लॉ जो होता है बीएनएसएस, वो हमें बताता है कि इसका हम प्रोसीजिंग कैसे करें। सब्सटेंसिव लॉ एक एडजेक्टिव लॉ के रूप में मान सकते हैं। तो उस प्रकार से हम उसका इंटेंशन को डिसाइड करते हैं, मेंस रिया को डिसाइड करते हैं, एक्टस रियस को डिसाइड करते हैं, तब जाके मेरा एक प्रोसीजर लॉ में कन्वर्ट होता है। जैसे कोई भी हम ऑफेंस करते हैं तो उसका हमारा इंटेंशन होना चाहिए, मेरा मेंस रिया क्लियर होना चाहिए, एक्टस रियस क्लियर होना चाहिए। तो सभी ऑफेंस का, सभी अपराध का अलग अलग एक्टस रियस होता है, एक्टस रियस होता है, या मेंस कंसिक्वेंस अलग अलग होता है। मर्डर हुआ तो उसका अलग कंसिक्वेंस होगा, चीटिंग हुआ उसका अलग, फ्रॉड हुआ उसका अलग, थेफ्ट हुआ उसका अलग कंसिक्वेंस होगा। तो हमको प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना है, स्टेट ऑफ माइंड देखना है कि जो ऑफेंस हम किए हैं उस ऑफेंस का प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, मेरा इंटेंशन क्या था, नॉलेज क्या था। इस चीज़ को जानकारी में जब तक आप नहीं लाएंगे तो वो आप सब्सटेंसिव लॉ को प्रोसीजर लॉ में कन्वर्ट नहीं करा। जैसे एफआईआर होता है, तो एफआईआर होने से पहले यदि कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, वो सब्सटेंसिव का पार्ट हुआ। एफआईआर होने के बाद जो भी प्रोसीजर होता है वो बीएनएसएस के थ्रू आता है, या उसे प्रोसीजर लॉ के अंतर्गत लाते हैं। क्रिमिनल केस में क्या होता है? क्रिमिनल केस में जजमेंट होता है। क्रिमिनल केस जो होता है, जो क्रिमिनल केस यदि कोई करता है, कोई व्यक्ति करता है, तो क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन होता है और एक एक्यूज होता है।
जो केस फाइल करता है उसको कहते हैं प्रोसिक्यूशन, और जो जिसके अगेंस्ट में केस फाइल हुआ है, जिसके विरुद्ध में फाइल हुआ, उसको हम एक्यूज कहते हैं। और उसके बाद जब उसमें जजमेंट होता है, उसमें पहले होता है एफआईआर होता है, एफआईआर होने के बाद आपका चार्ज फ्रेमिंग होता है, चार्ज फ्रेमिंग होने के बाद आपका ट्रायल प्रोसीडिंग चलता है, ट्रायल प्रोसीडिंग होने के बाद फिर जजमेंट प्रोसीडिंग आता है। उसके बाद आपको या तो कन्विक्शन होगा या तो एक्विटल होगा। इस सिचुएशन आपको सज़ा आपका देखा जाता है कि कितने माने कौन सा आप ऑफेंस किए हैं। यदि मर्डर किए हैं तो उसके लिए 10 साल का सज़ा या 20 साल का सज़ा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ सेंटेंस है, तो उस अनुसार से आपका प्रोसीडिंग चलता है। जैसे कम यदि पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देती है, यदि एफआईआर होने के बाद यदि पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देती है या मजिस्ट्रेट के सामने 160 पहले बीएनएसएस में आईपीसी में 164 के अंतर्गत कन्फेशन रिकॉर्ड होता था मजिस्ट्रेट के सामने, लेकिन अब तो धारा भी चेंज हो गया। तो उस अनुसार आपका जो रिपोर्ट होगा, क्लोजर रिपोर्ट हो चाहे आपका एफआईआर पुलिस रिपोर्ट जब तैयार हो जाए, तो 90 दिन के अंदर यदि मर्डर का केस है या कोई बड़ा ऑफेंस है या लाइफ ऑफेंस, तो 90 दिन के अंदर जुडिशियल माने उनको चार्जशीट दाखिल कर देना है पुलिस अधिकारी को, या पुलिस रिपोर्ट चार्जशीट को पुलिस रिपोर्ट को चालान भी कहते हैं, वो 90 दिन के अंदर दाखिल कर देना है। यदि वो 90 दिन के अंदर यदि दाखिल नहीं कर पाता है, यदि एक्यूज का ऑफेंस साबित नहीं कर पाती है, तो उसे या तो एक्विटल मिलेगा या कन्विक्शन मिलेगा। एक्विटल का मतलब हो गया बरी कर देना और कन्विक्शन का मतलब हो गया सज़ा सुना देना। अब यदि मान लें कि वो मर्डर से थोड़ा माने छोटा सा माने ऑफेंस किया, यदि मान लें कि 3 साल से ऊपर का ऑफेंस किया या 4 साल से ऊपर का ऑफेंस किया, तो इसमें 60 दिन का जुडिशियल कस्टडी होता है। 60 दिन के अंदर पुलिस को चार्जशीट दाखिल कर देना, उसके माने अगेंस्ट में, यदि एक्यूज के अगेंस्ट में चार्जशीट दाखिल हो जाता है, यदि इसका ऑफेंस साबित हो जाता है तो या तो कन्विक्शन होगा, यदि ऑफेंस साबित नहीं होता है तो एक्विटल होगा। इस अनुसार से क्रिमिनल केस चलता है। लेकिन सिविल मैटर में क्या होता है, सिविल केस में आपका प्रोसीजर देखा जाता है कि आपका प्रोसीजर क्या है। इसमें सज़ा नहीं होता है। सिविल केस में 2 व्यक्ति होते हैं, एक प्लेंटिफ होता है, एक डिफेंडेंट होता है। प्लेंटिफ को कहते हैं वादी, जो केस फाइल करता है उसे कहते हैं वादी, और जो केस जिसके विरुद्ध में केस फाइल हुआ उसे हम कहते हैं प्रतिवादी। डिफेंडेंट, वादी और प्रतिवादी। अब इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोसेस होता है कि इसमें या तो आपको डिक्री बनता है, यदि आपके फेवर में यदि डिक्री बना तो उसे कहते हैं डिक्री होल्डर। यदि आपके फेवर में डिक्री नहीं बनता उसको कहते हैं जजमेंट डेटर, यानी उसके अगेंस्ट में डिक्री पारित हुआ तो जजमेंट डेटर होगा। तो जिसके फेवर में डिक्री मिला उसे डिक्री होल्डर कहते हैं। उसका एग्जीक्यूशन करवाना पड़ता है। यदि डिक्री होल्डर हुआ, यदि वो समय पर यदि नहीं एग्जीक्यूशन कराता है तो उसका डिक्री के लिए आप अपील भी कर सकते हैं। तो इस अनुसार से सिविल प्रोसीजर में डिक्री बनता है, डिक्री के बेसिस पर जजमेंट बनता है, डिक्री और ऑर्डर के बेसिस पे। लेकिन डिक्री का मतलब होता है 3 प्रकार में डिक्री को हम डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइमरी डिक्री, दूसरा होता है प्राइमरी डिक्री एंड सेकेंडरी डिक्री, पार्टली फाइनल और पार्टली प्राइमरी डिक्री। तो फाइनल डिक्री जो होता है, जो बनता है, वो हमारा कंक्लूसिव नेचर करता है, वो 100% कंक्लूसिव होता है। उस पर ऑन मेरिट आपका डिक्री तैयार होता है। लेकिन प्राइमरी डिक्री और डिक्री में होता है कि ऑर्डर बेसिस पे हम उसको एक रख दिया, लेकिन एजुकेशन नहीं किया। एजुकेशन मीन्स होता है न्याय निर्णय, 100% एजुकेट नहीं किया गया, तो डिक्री का यह निष्पादन नहीं हो सकता। जब तक फाइनल डिक्री नहीं होगा तब तक आप एग्जीक्यूशन नहीं करवा सकते। इस प्रकार हमारा सिविल प्रोसीजर कोड चलता है। अब जैसे फैमिली का मैटर हो गया, तो फैमिली के मैटर में फैमिली का डिस्प्यूट है, जैसे पति पत्नी का डिस्प्यूट हो गया, या 498 का मुकदमा चल रहा है, या आपका दहेज एक्ट का मुकदमा चल रहा है, तो उस सिचुएशन में सिविल प्रोसीजर को अपनाया जाता है, सिविल कोड को अपनाया जाता है। क्रिमिनल इसमें इस फैमिली मैटर में एक्यूज को जल्दी जेल नहीं होता है, माने उसको जल्दी सज़ा नहीं होता है, ये लॉन्ग टाइम चलता है। माने कि फैमिली मैटर में जल्दी एक्शन नहीं ले पाती है कोर्ट। इसमें नियम बनाया गया है कि आप
498 का चल रहा मुकदमा, दहेज का मुकदमा चल रहा, वो व्यक्ति उसके ऊपर आरोप लगा रहा है, वो व्यक्ति उसके ऊपर आरोप लगा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि सिविल का मैटर है, इसमें पुलिस को पावर नहीं रहती है वो जल्दी अरेस्ट करने का, वो कानून के अंदर ही काम करना है। तो कानून हम लोग का जो है वो थोड़ा सा लचीला है और थोड़ा सा लॉन्ग टाइम में लगता है सिविल प्रोसीडिंग में। अब सिविल प्रोसीडिंग में कागज़ का मेन वैल्यू होता है, जो जिसका एविडेंस जितना अच्छा होता है उसका अच्छा माने रिजल्ट आता है। अब फैमिली मैटर में कोर्ट क्या करेगी, फैमिली मैटर में कोर्ट के पास पावर कम रहता है, वो जल्दी पहले था कि वो अरेस्ट कर लेती थी तुरंत एक्यूज माने प्लेंटिफ को, डिफेंडेंट को, प्रतिवादी और वादी और प्रतिवादी को। लेकिन अब तो ऐसा है नहीं, अब तो अब तो कानून भी चेंज हो गया। तो पहले था कि दहेज फैमिली मैटर में कोर्ट भी ज़्यादा इस पर डिस्क्रिशन नहीं करती, इनहेरेंट पावर नहीं है उनके पास, जिस कारण से मुकदमा बहुत लंबा चलता है। और पहले पहले था कि इस पे तुरंत एक्शन होता था, और बहुत सारा जो इवेंट्स हो गया इस कारण से कानून भी चेंज हो गया। इसलिए अब जो मैटर जो हो रहा है, पति पत्नी का मैटर हो, तो इस सिचुएशन में हमेशा आपस में म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, आपसी समझौता होना चाहिए। एक दूसरे पे एलिगेशन लगाने के लिए फिर एक दूसरे को साबित करना पड़ता है। अब सिविल का मैटर है, इसमें आप तुरंत अरेस्ट नहीं हो पाइएगा, जब तक आपका क्रिमिनल केस नहीं चलेगा तब तक आपको अरेस्ट का प्रोविज़न नहीं है इसमें। अब सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन आ गया है कि पहले था कि 498 का मुकदमा होता था, तुरंत अरेस्ट प्रोसीजर हो जाता था, तुरंत लड़का को जेल हो जाता था। लेकिन अब ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ, जिस कारण से बहुत सी इवेंट्स हो गया, बहुत सा घटना भी हो गया। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने साफ डिक्लेयर बोल दिया कि अब अरेस्ट का प्रोविज़न नहीं किया जाएगा जब तक ऑफेंस साबित नहीं किया जाएगा सिविल प्रोसीजर में। जब तक एक दूसरे का आरोप साबित नहीं होता है तब तक अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। आज का वीडियो हम यहीं पे वाइप आउट कर रहे हैं, अगले वीडियो में हम आपको और भी डीपली डिस्कस करेंगे। डेट्स ऑल। फैमिली मैटर को हमेशा म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, डेट्स ऑल।